Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. So vai manah Krishna padaravindayo vachamsi vaikunta gunanubharnane karor harer mandiram arjanadishu Shatim chakara chutashatkat hodaye Mukunda lingalay darshane darsho Tadapritya gata spashayanga sangamam Granam chapada saroja saurabhe Shrimat tulasya rasanam tadarpite Padau hare shetar padanu sarpane Shiro rishikesha padavi vandane Kamam chadasana tu kama kamya Yatottama shloka jana shayaratihi Maharaj Ambarisha always engaged his mind in meditating upon the lotus feet of Krishna, his words in describing the lotus of Krishna, his hands in cleaning the Lord's temple, his ears in hearing the words of Krishna, or about Krishna, engaged in eyeing the eyes in seeing the deities of Krishna, Krishna temples and Krishna places like Mathura and Vrindavan, engaged in sense of touch, in touching the bodies of the Lord, devotee engaged in sense of smell, in smelling the fragrance of Tulsi offered to the Lord, engaged in tongue in tasting the Lord's prasadam, and he engaged his legs in walking to the holy places and temples of the Lord, his head in bowing down before the Lord, all his desires in serving the Lord 24 hours a day. Indeed, Maharaj Ambarisha never desired anything for his own sense gratification. He engaged all his senses in devotion service and various engagements related to the Lord. This is a way to increase attachment to the Lord and be completely freed from all material desires. So, ये तो बहुत ही famous verse है भागवत में. प्रभुपाद जी इसको बहुत जगह कोट करते हैं. भगवद गीता में भी जब फेमस श्लोक आया मय्या सक्त मना पार्था योगम युंजम अदाशय असंशयम समग्रम याम यथा ज्ञासी तश्यनो. 7th canto, 7th chapter, 1st shloka. And again this shloka is also an expansion of the statement by Rupa Goswami, which is quoted in Chaitanya Charitamrita. Bhakti ka definition, Rishikena, Rishikesha, Sevanam Bhakti Uchyate. Sarvopadi vinirmuktam tat paratvena nirmalam, Rishikena, Rishikesha, Sevanam Bhakti Uchyate. Person has to become free from all upadis. Tat paratvena nirmalam. इस तरह हृदय पवित्र हो जाना चाहिए. Rishikena, Rishikesh. In this way, when we serve through the senses, the Lord of the senses, the Lord, that is called Bhakti. But कैसे ऋषिकेन ऋषिकेश करें इस तात्पर्य में लिखा हुआ है. इंद्रियों से भगवान का सेवा करना है, ये तो दे दिया. कैसे कर सकते हैं? This is given. And he is a king, still he is following. And he is successful because Lord is totally pleased. So he is, it's a success story in front of us. We should take all the hints of what is he doing. So it starts with Savai Manah Krishna Padara Vindayo. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किस तरह अपना मन कृष्ण के चरण में रखना. सबसे पहले वहाँ से शुरू होता है. इंद्रियों में मन मुख्य है. अगर मन कहीं फिक्स हो गया ऑटोमेटिकली इंद्रियां फॉलो करेंगे. तो सबसे पहले है मन को कृष्ण के चरण में रखना. सवई मनः कृष्ण पदार विंदयो. जैसे भगवान को नमस्कार करते हैं, एक्चुअली अपने माथे को भगवान के चरण में रख रहे हैं. उसका वही मीनिंग है, हम स्वीकार कर रहे हैं. स वै मनः कृष्ण पदार विंदयो. नेक्स्ट, ठीक है, दैट इज द बिगिनिंग.
Bhagavad Gita also Krishna says, Mana Mana, always think about me. So it starts with keeping the mind. Bhajahu re mana Shri Nanda Nandana Abhaya Charanara Vindere. Same चीज. Bhajahu re mana. मेरा मन कृष्ण का नाम जप करो, कृष्ण के चरण में चले जाओ. So Vachamsi Vaikunta Gunanuvanane. Now what do you do with the words? We speak so many things. So क्या करने का उससे? Vachamsi Vaikunta Gunanuvanane. We always use the words in glorifying the Lord. The next, Karor Harer Mandir Marjanadishu. अब हाथ से कुछ कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? हरेर मंदिर मार्जनेशु. भगवान का मंदिर साफ करिए. मंदिर मार्जना. We have in the qualifications of Acharya also the word mandir marjanadishu. What is the third verse? Samsar Damrala. Shri Vigrahara Dana Nityanana Shingaratana Mandira Marjanadu. Mandir Marjanadu. So सबसे पहले क्या करने का है? भगवान का भक्त बनना है तो अपना मन सबसे पहले कृष्ण के चरण में रखे. स वै मना कृष्ण पदारविंदयो. द सेकेंड थिंग दिस श्लोका सेज क्या करना है? वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने. वाचांसी बोलने की बहुत आदत है. बक 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 बक. आप हिंदी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं? मेरे को लगा आप नॉर्थ इंडियन से, इसलिए मैंने क्लास हिंदी में कर दी. शुक्रिया. सो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने. भगवान की अगर शरण लेना है तो ये अम्बरीश महाराज एक बहुत महान राजा रहे हैं. हमारे भागवत में इनका बहुत डिस्क्रिप्शन है. इतने बड़े एक तपस्वी दुर्वासा मुनि को उन्होंने हरा दिया था. तो भागवत में एक ये सब हमारे लिए उदाहरण दिए गए हैं क्योंकि ये लोग सब सक्सेस स्टोरी है. जैसे आपका किसी का बेटा IAS में पास करता है, सब लोग सुनते हैं क्या क्या किया वो, भाई हम भी वो एक चीज़ करेंगे. तो ये इतने महान भक्त भगवान के बने, क्या किया इन्होंने, इसका थोड़ा भागवत में डिस्कशन है. स वै मन कृष्ण पदारे विंदु. सबसे पहले वो अपना मन कृष्ण के चरण में रख दीजिए. बिकॉज मन इंद्रियों में मुख्य है. अगर मन कहीं चला गया इंद्रियां तो पीछे चले जाएंगी. तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? जैसे आप भगवान को नमस्कार करते हैं, अपना माथा टेक रहे हैं, एक्चुअली माथा भगवान के चरण में रख रहे हैं. उसका मतलब वही होता है, भगवान हम आपके शरणागत होते हैं. स वै मन कृष्ण पदारविंदयो. सबसे पहले चीज अपने मन को कृष्ण के चरण में रखिए. नेक्स्ट चीज वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने. पूरा दिन बक 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 बक. वाच वैकुंठ गुणानु. भगवान के बारे में बोलो. क्यों इधर उधर की बात बोलना है ना? इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, वो जीत गया, वो हार गया. क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? समय सीमित है. वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने. भगवान की महिमा बोलो. कलयुग में नाम ही आधार है. कलयुग में बाकी चीज़ करना, जंगल में जाके तप करना, बड़े बड़े होम करना, ये सब असंभव हो गया है. तो ये सब क्रिया वेद की क्रिया है, भगवद गीता ही मेंशन करी है, लेकिन कलयुग में असंभव नहीं है. कृत्य अध्याय थे विष्णु. सतयुग में ये पॉसिबल था, ये ध्यान करना. त्रेतायुग में तो मके, त्रेतयुग में यज्ञ करना भी संभव था, अभी संभव नहीं है. द्वापारे परिचय है. द्वापार युग में बड़ी बड़ी अर्चन होती थी, ठीक है. अब कलयुग में भी अर्चन होती है, लेकिन हरि नाम के आधार में अर्चन होती है, ठीक है ना. और कलोद हरि कीर्तनाथ. कलयुग में हरि के कीर्तन से ही आदमी को पूर्ण सफलता मिल जाती है. अगर आप बोले कि चलो मेरे को तो कुछ करने का टाइम नहीं है, ठीक है, एक काम कर सकते हो, आप बैठ के अगर हरिनाम जप कर लोगे तो सब हो जाएगा. उसके अंदर पूरा धर्म हरिनाम के में आधारित है, उसमें कंप्लीट हो जाता है. स वै मना कृष्ण पदारविंदो. वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने. ये तो गुणानुवाचांसी वैकुंठ. भगवान के वैकुंठ भगवान के नाम है. देखिए इतनी अच्छी ये पोएट्री है. हर लाइन में कृष्ण का अलग नाम यूज़ किया है. पहले लाइन में क्या यूज़ किया? स वै मना कृष्ण पदारविंदो. दूसरी लाइन है वैकुंठ. वैकुंठा मतलब जहाँ एंग्जाइटी नहीं है. कृष्ण के धाम में कोई एंग्जाइटी नहीं है. हाँ, इसलिए हम भगवत धाम जाने की इच्छा रखते हैं. स वै मना कृष्ण पदारविंदो. वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने. बहुत सुंदर है. करोड़ हरेर मंदिर मार्जनादिशु. तीसरा चीज, अपने हाथ से मंदिर हमेशा साफ करना चाहिए.
हो सकता है अपने घर में हम बड़े हों, जैसे आपके अभी देखिए जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा होने वाला है, वहाँ राजा आएगा और सबके सामने झाड़ू लगाएगा, तो ये प्रक्रिया है। हो सकता है राज्य में राजा हो लेकिन भगवान के सामने तुम एक निम्न कोटि के आदमी हो, सफाई करो, उससे अच्छा रहता है। अपने मन को भी थोड़ा वो लगता है, हाँ भाई मैं भगवान का सेवक हूँ, क्योंकि को झाड़ू उठाने में बड़ी शर्म लगती है, लेकिन राजा भी जब भगवान के आगे झाड़ू उठाता है तो उसको भी लगता है सबके सामने भाई मैं तो भगवान का एक दास हूँ। तो पब्लिक को भी एक एग्जाम्पल मिलता है, देखो अगर दास हो तो हम भी दास हो गए। करोर हरे मंदिर मार्जनादिशु, मार्जनादिशु मतलब सफाई करना। श्रुतिम चकार अश्रु सतकुथोदय। अब सुनने का दोस्तों, अगर सुनने का बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सुनेंगे क्या सुनेंगे उसी से हमारी पूरी मन बदल जाता है। एक्चुअली पूरे हर क्षण अपने मन को सुन रहे हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। हम क्या सुन रहे हैं इसमें डिस्क्रिमिनेट करना पड़ता है, बहुत शार्प होना पड़ता है। क्या सुन रहे हैं, क्या चीज़ हम सोच रहे हैं, बहुत शार्प होना पड़ता है। जितना शार्प होगा उतने आप एडवांस्ड हो गए। जिस आदमी का इंटीग्रिटी बहुत हाई होता है वो बेमतलब की चीज़ बिल्कुल भी नहीं सुनता। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं अव्यर्थ कालत्रम, महान भक्त का लक्षण है एक क्षण बर्बाद नहीं करता। अव्यर्थ का एक क्षण बर्बाद नहीं करता। बेमत की चीज़ वो सुन ही नहीं सकता, क्योंकि जो सुनोगे उससे पूरा मन विचलित हो जाता है। अगर कोई चीज़ भगवान की सेवा के विपरीत है उसको सुनना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम सुनते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं। 24 घंटे न्यूज़ के चैनल चल रहे हैं टीवी में, लोग पूरा दिन बैठे रहते हैं। सुनो, जनरली बुढ़ापे में लोग पूरा दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हाँ चलेंगे, ठीक है, इनको थोड़ा प्रसाद देते साई। तो श्रुतिम चकार अच्युत कथोदय, तो सुनना क्या सुन रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृश्यो, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकुंद भगवान के विग्रह का दर्शन करना। हाँ, मुकुंद लिंगालय दर्शने दृश्यो तद्भृत्य गात स्पर्श अंग संगमम, तद्भृत्य गात स्पर्श अंग संगमम। ए मेरे रूम में रखा है, 2 लड्डू दे दो, टेबल में रखा है। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृश्यो, हाँ मंदिर में जाके भगवान के विग्रह का दर्शन करना। तद्भित्र गात स्पर्श अंग संगमम, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो जनरली बहुत चीज़ देखने का मन होता है इस दुनिया में, हम लोग आकर्षित हो जाते हैं कोई चीज़ सो कॉल्ड सुंदर हो। तो मुकुंद लिंगालय दर्शने दृश्यो, भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन करने से मन में इस दुनिया का सो कॉल्ड सुंदर चीज़ को देखने की इच्छा खत्म हो जाती है, फिर कोई मन नहीं करता। बहुत मन कर रहा है ये देखना है वो देखना है। मुकुंद लिंगालय दर्शने दशो, ये हमारा कार्ड दे दो ना, मंदिर का कार्ड दे दो। मुकुंद लिंगालय दर्शने दशो तद्भित्र गातर स्पर्श अंग संगमम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तद्भित्र गात स्पर्श अंग संगमम मतलब भक्तों के संग में रहना। तद्भृत्य गात्र स्पर्श अंग संगमम। ग्रानम चतपाद सरोज सौरभे, हमेशा प्रसाद को ग्रहण करना, स्वीकार करना। श्रीमद तुलस रसनम तदर्पिते, और ये जैसे मंदिर में चरणामृत लोगों को देना जब आते हैं, हाँ इसलिए तो चरणामृत बनता है। श्रीमद तुलस्य तदर्पिते, श्रीमद तुलस्य रसनम तदर्पिते, जो तुलसी का वाटर होता है उसको टेस्ट करना चाहिए। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, और अपने जो पैर होते हैं हरे क्षेत्र भगवान के जगह जाने का, ठीक है, हरे क्षेत्र, हरि का जो क्षेत्र है उधर जाने का। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, और अपने सिर को भगवान के चरण में नमस्कार करना। कामम च दास न तो काम कामेया, इच्छा होती है शायद वो हो जाए, लोगों की तरह तरह की इच्छा होती है, इंद्रिय भोग की बड़ी बड़ी इच्छा, उसकी जगह खाली ये इच्छा भगवान की इच्छा पूर्ण। कामम च दास न तो काम कामेया, भगवान का सेवा ही एक काम है और कोई काम नहीं है। काम काम है, अपनी कोई इच्छा नहीं है। ये जो शरणागति के 6 प्रिंसिपल्स में ये भी एक प्रिंसिपल है। आई हैव नो डिज़ायर अदर देन डिज़ायर ऑफ द लॉर्ड।
यतोषम श्लोक जनाशया रति रति। और इस तरह रति, रति मतलब अटैचमेंट, he developed attachment for the service to the Lord. This is the way to increase attachment for the Lord and completely free from all material desires. So this is मतलब such a beautiful poetry. अगर आप इसको गाएंगे भी, this is like magic. सुनने में भी अच्छा लगता है. स वै मनः कृष्ण पदारविन्दयो, then वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, करोर हरेर मंदिर मार्जनादिषु, श्रुतिम चकारा चुतशत कथोदये. सुनने में कितना अच्छा लगता है. हाँ, नहीं, मुकुंद लिंगालय दर्शने दिशो, तद्भृत्य गात स्पर्श अंग संगमम, ग्रामम तदपाद सरोज सौरभे, श्रीमत्तुलस्य रसनम तदर्पिते, पादौ हरे क्षेत्र पदाभिवंदने, श्रीमत्तुलस शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, कामम चदास न तो काम कामया, यथोत्तम श्लोक जनाशया रति. ब्यूटीफुल श्लोक है, इसको कंठस्थ करना चाहिए. प्रभुपाद जी ने बहुत बारी कोट किया अपने लेक्चर्स में, परपर्ट्स में, उनको बहुत प्रिय था ये श्लोक. दिस श्लोक गिव्स एन एग्जाम्पल हाउ वी कैन सरेंडर. इट्स वेरी ईजी, बहुत प्रैक्टिकल है. दिस इज प्रैक्टिकल एंगेजमेंट इन डिवोशन सर्विस. बहुत लोग सोचते हैं अपने मन को काबू में लाएंगे, और उनका तरीका क्या होता है, मन से युद्ध करना. उससे मन कभी काबू में नहीं आएगा. आप प्रैक्टिकल एंगेजमेंट करिए. जैसे आप एंगेजमेंट करेंगे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में, मन ऑटोमेटिक काबू हो जाएगा. हम 3rd कैंटो में भी चैप्टर भगवद गीता के डिस्कस कर रहे थे. 3rd चैप्टर में क्या कि मोर इंद्रियाणि परानिया भू इंद्रियव परमा मनः, मनसस्सु परा बुद्धे यो बुद्धे परसस्सु सहा. तो शरीर से मोर शक्तिशाली इंद्रिया होती है, बिकॉज इंद्रियों की वजह से शरीर की वैल्यू है. इंद्रियों से ज़्यादा शक्तिशाली मन होता है, बिकॉज मन इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है. मन से ज़्यादा शक्तिशाली बुद्धि होती है, बिकॉज बुद्धि मन को भी कंट्रोल कर लेती है. और बुद्धि से शक्तिशाली आत्मा है, सबसे शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, सबसे सुपीरियर. ना अगर हमको लाइन पे आना है तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो. अगर आप इंद्रियों को भगवान की सेवा में ला दोगे, क्योंकि सीधा मन बुद्धि कंट्रोल नहीं होंगे, बहुत शक्तिशाली हैं, आप नहीं संभाल पाओगे उन्हें. करेक्ट. इसलिए जब आदमी किसी चीज़ से एडिक्ट हो जाता है, उसको इंद्रिय भोग की वस्तु से कुछ टाइम के लिए दूर रखने की एडवाइस दी जाती है. आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. अपनी इंद्रियों दृष्टि से दूर रखो, आप उसको भूल भी जाओगे. समय का टाइम है. यही जितने भी आपके रिहेबिलिटेशन कैंप्स हैं, 2 हफ्ता 3 हफ्ता, यही तरीका है उनका. कोई मैजिक नहीं कर रहे, ऐसा करते हैं, उसको दूर रख देते. क्या होता है, धीरे 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 आदमी इंद्रियों की वस्तु से दूर हो जाता है. ठीक है. सो यही सुंदर ज्ञान इधर है. स वै मनः कृष्ण पदारविन्दयो. तो अम्बरीश महाराज ने फॉलो किया है. कोई भी इसको अगर आप फॉलो करेगा, ही विल ऑल्सो अचीव सक्सेस. इज गिविंग एन एग्जाम्पल. ओके. अब एग्जाम्पल देखिए, इतना शक्तिशाली था, जब दुर्वासा मुनि उन पर गुस्सा होकर एक राक्षस बनाते हैं, तो सुदर्शन चक्र उनको नाश कर देता है. उसको पूर्ण सुरक्षा मिलती है. उसने कोई तपस्या नहीं करी है दुर्वासा मुनि जैसी, या हिरण्यकशिपु जैसी कोई महान तपस्या नहीं. सिंपल काम, बहुत सिंपल काम. तो भक्ति की जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, ये कोई छोटा चीज़ नहीं है, बहुत शक्तिशाली है. बिकॉज सर्वशक्तिमान भगवान तब आपकी सुरक्षा करते हैं. ठीक है. जो योगी होता है या तपस्वी होता है, अपनी शक्ति से अपनी सुरक्षा करना चाहता है. यही समाज है. लेकिन जो भक्त होता है, वो भगवान से सुरक्षा पाता है. वो अपने कॉन्फिडेंस पे नहीं चल रहा है. और अपने कॉन्फिडेंस पे तो हम देख रहे हैं, चलता तो है नहीं, एंड में तो आदमी मर जाता है. लेकिन भगवान की शरण में जाने से फिर वो अमर हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज भजौ रे मन श्री नंदन अभय चरणार विंदर. अभय चरणार, आदमी अभय हो जाता है. जैसे भगवद गीता में भी हैव डिस्कशन द 1st चैप्टर में, जब पांडव और कौरव दोनों शंख बजाते हैं, तो कौरव शंख बजाते हैं तो पांडव लोग सुन लेते हैं. ठीक है भाई, वो तो नंबर में भी ज़्यादा थे. लेकिन जब पांडव लोग शंख बजाते हैं, कौरव के हृदय कांपने लगता है. क्यों? उनका पूर्ण विश्वास था कि भगवान की सुरक्षा है. सो अम्बरीश महाराज भगवान की शरण लिए हुए थे, इसलिए उनको शांति थी, उनको किसी चीज़ का डर नहीं था. और इससे वो महान भक्त भी बन गए. श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತೇವೆ. ಏನು ಮಾಡಲು ತೋಚದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದ. ಅವನ ಸ್ವಂತ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಗುರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವಂತಾಯಿತು. ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬೋಧನೆ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈ ದೇಹವಲ್ಲ, ನಾವು ಆತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಅಂಶ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚೇತನವು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಧೋಗತಿಗಿಳಿದ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಪ ತುಂಬಿದ ಜೀವನವೇ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದಾಯಕ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಸತ್ತ ನಂತರ ನರಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಚೇತನದ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಜಂಜಾಟಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಜನರು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ, ಜ್ಞಾನ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗವೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ ಮನುಷ್ಯನು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಕಮಲವನ್ನು ಸೇರಿ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಹರಿನಾಮದ ಜಪ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಲರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಅಚಲರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವರನ್ನು ತಲುಪಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ 4 ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ದೇವರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತಹ 4 ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಮಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತೆಂದು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳು ಅವರವರ ಗುಣ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಗನುಗುಣವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಹುಟ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯದೇವ ವಿವಸ್ವಾನನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ. ನಂತರ ಅವನ ಪುತ್ರ ಮನು ಹಾಗೂ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಗೆ ಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು. ಭಗವಂತನು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಜಗತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ. ಈ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವು ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದ ಯಾರಾದರೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾದ. ಇದರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ನಮಗೆಲ್ಲ ದೊರಕುವಂತಾಯಿತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಕನ್ನಡವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಂಗಳೂರಿನ ನಂತೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.